وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بلا شبہ تمام قسم کی تعریف وحدہ لا شریک صلی رب العالمین کے لیے ہے، جس کی ہم آپ تعریف بیان کرتے ہیں اور اسے اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین راہ دکھا دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ آج میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حمد و صلاۃ کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ، تمام طریقوں سے افضل طریقہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تمام کاموں میں بدترین کام، تمام کاموں میں برا کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، اور پھر اسے بہت سارے مرد عورتوں کو انہی زمین پر پھیلا دیا۔ رشتہ توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ایسی بات کہو جو محکم، سیدھی اور سچی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ جس شخص نے اللہ کی اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تکونوا کالتی نقض، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 1707، کہ مکہ کی ایک خاتون تھی، مکہ کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا خرقہ۔ وہ سائیکو تھی، وہ پاگل تھی، اس کا دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ وہ پاگل ہونے سے پہلے اس کا ایک فن تھا جو وہ کام کیا کرتی تھی۔ وہ فن تھا سوت بننے کا، یعنی روئی سے دھاگا اور دھاگا سے کپڑا بننے کا وہ کام کرتی تھی۔ ویئر تھریڈز انٹو کلاتھ، اپنے ہاتھوں سے وہ کپڑا کو بنا کرتی تھی۔ اس نے یہ بچپن سے سیکھا تھا، پاگل ہونے سے پہلے اس کے پاس یہ فن تھا، یہ ہنر تھا۔ پاگل ہونے کے بعد جب وہ سائیکو ہو گئی، جب اس کا دماغ ڈسٹرب ہو گیا، اس کے بعد اس کو کسی چیز میں شعور نہیں تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کو کسی چیز میں شعور نہیں تھا۔ لیکن یہ کام کو، کپڑا بننے کو بخوبی انجام دیتی تھی۔ اس میں وہ ماہر تھی، ایکسپرٹ تھی اس کام کرنے میں۔ کہاں دھاگا کیسے لگانا ہے، کہاں پتلا لگانا ہے، کہاں موٹا لگانا ہے، وہ سب جانتی تھی، اس میں ماہر تھی۔ صبح سے لے کر شام تک یہی کام کرتی تھی، صرف قضاء حاجت کے لیے اٹھتی اور پھر اسی میں لگ جاتی تھی، کپڑا بناتے رہتی تھی، شام تک کپڑا بناتی، اور شام ہوتے ہی وہ کیا کرتی تھی، جتنے اب کپڑے بنے ہوئے ہوتے تھے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، اس کو الگ الگ کر دیتی، نوچ دیتی تھی، یعنی اپنی ہی محنت پر خود وہ پانی پھیر دیتی تھی۔ ویسٹ یور آن ایفورٹ، اپنی ہی محنت پر خود وہ پانی پھیرتی تھی۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 ورس نمبر آیت نمبر 92، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ، کہ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا، ڈونٹ بی لائک شی who untwisted، اس عورت کی طرح تم نہ ہو جانا۔ اللہ بتلا رہا ہے تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ کیا کرتی تھی، مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اٹ واز اسٹرانگ، جب اسے مضبوطی سے بون لیتی تھی اس کپڑے کو تو کیا کرتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی، الگ الگ کر دیتی تھی، اپنی محنت پر پانی پھیر دیتی تھی۔ اللہ بتلانا چاہ رہا ہے، اے میرے بندو، اے آدم کے اولاد، آدم کے بیٹے، تم وہ کام نہ کرنا جو کام وہ عورت کیا کرتی تھی۔ وہ عورت پاگل تھی، تم تو پاگل نہیں ہو۔ وہ عورت سائیکو تھی، تم تو سائیکو نہیں ہو۔ اس عورت کا دماغ ڈسٹرب تھا، تمہارا تو ڈسٹرب نہیں ہے، تمہارا تو عقل کام کرتا ہے، اس عورت کا عقل کام نہیں کرتا تھا۔ اللہ نے تمہارے پاس ذہن تو دیا، دماغ تو دیا ہے نا۔ اے میرے بندو، تم وہ عمل کرنا
जो शरीयत के मुताबिक हो। ऐसा अमल ना करना जो अमल के अंबार लेके आओ, ढेर लेके आओ, नमाज पढ़ के लेके आओ, रोजे रख के लेके आओ, ज़कात, सदका, हज सब लेके आओ, लेकिन अल्लाह का है वमा लहुम फिल आखिरति मिन खलाक, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 200। अल्लाह का है मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं कि मैं तुझे दूं। तुमने नमाज तो लेके आए हो लेकिन मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। शैतान आपसे ये नहीं कहेगा कि नमाज मत पढ़िए, शैतान आपसे ये नहीं कहेगा कि रोजा मत रखिए, शैतान आपसे ये नहीं कहेगा हज ना करिए, ज़कात ना दीजिए, शैतान आपसे नहीं कहेगा उम्रा ना करिए, इबादतें ना करिए। शैतान कहेगा करिए, लेकिन आपके मेहनत पर पानी फेरवाएगा शैतान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया सूरह सबा सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 6 वर्स नंबर 6, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा। शैतान तुम्हारा खुल्लम दुश्मन है, वो तुम्हारे अमाल को बर्बाद करना चाहता है, तुमने नेकियां जो किए हो उसे जाया करवाना चाहता है, वेस्ट करवाना चाहता है। फजर में उठते हैं, ठंड का मौसम है, ठंडे पानी से वजू करते हैं, फजर की नमाज अदा करते हैं, अल्लाह अकबर पर आप हय्य अला सलाह मौज़िन करता आप लब्बैक कहते हैं, ये आपकी मेहनत है। जुम्मा के दिन दुकान बंद करके आप मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ने आते हैं, ये आपकी मेहनत है। रोजा रखते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, दिन भर प्यासे रहते हैं, हलक से एक कतरा बूंद, एक बूंद तो अपने हलक से नीचे नहीं उतारते, एक खाना तक नहीं खाते हैं, एक चावल, भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, ये आपकी मेहनत है। उम्रा करते हैं, हज करने जाते हैं, पैसे लगाते हैं, ये आपकी मेहनत है। लेकिन इसी मेहनत पर कहीं ऐसा ना हो कि शैतान पानी फिरवा दे। अमाल तो लेके आइए, नमाज के ढेर हो, रोजे के ढेर हो, ज़कात के ढेर हो, लेकिन अल्लाह का है कि ऐ मेरे बंदे तुमने वो अमल किया कि मैं तुझे कुछ ना दूं, मेरे पास देने के लिए है ही नहीं कि मैं तुझे दूं। क्यों? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी का हदीस है, हदीस नंबर 1903, उठाकर पढ़िए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही, इफ देयर टू डीड्स इन योर लाइफ, अगर आपके जिंदगी में दो अमल है, दो अमल, अगर आपके लाइफ में दो अमल है तो आपका नमाज पढ़ना बेकार है, आपका रोजा रहना, भूखे रहना, प्यासे रहना, फजर में उठना, नमाज पढ़ना सब बेकार है। हज करने जाते हैं, हज करना बेकार, उम्रा करना बेकार, ज़कात देना बेकार, इबादतें करना बेकार, अगर आपकी जिंदगी में दो अमल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम्हारी जिंदगी में दो अमल है तो तुम्हारे तमाम अमाल बर्बाद है। खासकर रमजान के रोजे को कहा गया है कि इस रोजे भी बर्बाद है तुम्हारे, क्योंकि बंदा इसमें भूख रहता है, प्यासे रहता है। क्या है दो अमल? कौल ज़ूर, फॉरगेट स्पीच, वो बात अपनी जबान से वो बात निकालना जो शरीयत के खिलाफ हो, कुरान और हदीस के खिलाफ हो, चाहे वो गाली की शक्ल में हो, चाहे वो किसी की बुराई करने की शक्ल में हो, चाहे किसी की ग़ीबत करने की शक्ल में हो, चोरी करने की शक्ल में हो, आपका सारा नमाज बर्बाद है। गाली देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपनी जबान से गलत बात निकालते हैं, अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, अपनी जबान से किसी को परेशान करते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं, आपका नमाज पढ़ना बेकार है, अल्लाह अजर नहीं देने वाला है। रोजा रहना बेकार है, अल्लाह अजर नहीं देने वाला है। आज से तौबा करिए कि इंशाअल्लाह आज से हम कौल ज़ूर को छोड़ते हैं। तौबा करिए यहां से। अमल ज़ूर वो अमल जो आपने शरीयत के खिलाफ की हो, वो काम जो कुरान और हदीस के खिलाफ आपने अमल किया हो, आपका नमाज पढ़ना बेकार है, रोजा रहना बेकार है, ज़कात देना बेकार है, हज करना बेकार है, या सूद की शक्ल में हो, सूद लेते हो, देते हो, उसका कारोबार करते हैं, सब बेकार है। किसी का माल हड़प लिए हैं, माल गबन कर लिए हैं, रिश्तेदारों का माल गबन कर लिए हैं, सब बेकार है। इबादतें करना बेकार है, रोजा रहना सब बेकार है। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे जिंदगी में ये दो अमल है, तुम इन दो अमल से तौबा करो, तब इबादत करो, तब रोजा रहो, तब नमाज पढ़ो, तब मैं तुम्हें अजर दूंगा। आइए हम तौबा करते हैं, हम अपने गिरहबान में झांकें, हम सब अपने अपने गिरहबान में झांकें, क्या हमारे अंदर भी कौल ज़ूर है, अमल ज़ूर है? क्या हम वो बात करते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो, या वो हम अमल करते हैं जो शरीयत के खिलाफ हो? तौबा करें, रुजू करें आज से वो अमल ना करेंगे जो शरीयत के खिलाफ हो, वही अमल करेंगे जो शरीयत में होगा। ये जो महीना चल रहा है, शाबान का महीना चल रहा है, इस महीने में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मामूल था? सुनने निसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2358। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इतने रोजे रखते थे, इतने रोजे कसरत से रोजे रखते थे, तो लगता ही नहीं था कि आप कभी रोजे छोड़ेंगे। और जब छोड़ देते थे रोजे तो लगता ही नहीं था कि आप कभी रोजे रखेंगे। ये मामूल था। रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। सुनन नसाई की हदीस है, हदीस नंबर 2359। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने देखा रोजे रखते हुए। पूछते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल आप इस महीने में कसरत से रोजा रखते, क्यों रखते हैं? रीजन क्या है, वजह क्या है, आप इस महीने में क्यों रोजा रखते हैं इतनी कसरत से? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमल करते थे तो सहाबा सवाल क्या करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि रजब और रमजान के बीच का जो महीना है, शाबान का जो महीना है, इससे लोग गाफिल बरतते हैं, गफलत करते हैं लोग इससे। इस महीने में नाम आमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मेरे नाम आमाल पेश किए जाए तो मैं रोजे से रहूं। आई एम फास्टिंग। ये कौन कह रहा है? जो मासूम अनिल खता है, वो रोजे रख रहे हैं। ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल। शाबान के महीने में फिक्स करके रोजा नहीं रखते थे कि इसी दिन रहेंगे। और अज़वाज मुतहरात, हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन का क्या मामूल था? उनका मामूल था कि अगर रमजान के रोजे किसी शरई उस्र की वजह से छूट जाते थे, कज़ा हो जाते थे, तो इस महीने में, शाबान के महीने में अपनी गिनती को पूरा कर लेती थी, उस छूटे हुए रोजे को मुकम्मल कर लेती थी, उस कसे हुए रोजे को पूरा कर लेती थी। हम में से भी अगर किसी भाई का, किसी बहन का रोजा छूटा हुआ है तो इस महीने में पूरा कर ले, अपनी गिनती को मुकम्मल कर ले। और इस महीने में जो लोग खास कर इबादत करते हैं, शाबान के महीने में खासकर 15वीं तारीख को, उस दिन हलवा बनाते हैं, रात में इबादतें करते हैं, रोजे रखते हैं खासकर उसी दिन, और कब्रिस्तान को सजाते हैं, हाईलाइट करते हैं, मस्जिदों को हाईलाइट करते हैं, रात भर एक रात में शमानी करते हैं, कुरान खत्म कर देते हैं एक रात में पूरा। इस सब का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस सब का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, कुरान हदीस से सब कोई ताल्लुक नहीं है। ये सब बिदअत है। अल्लाह से दुआ करना चाहिए, अल्लाह हम सबको इस बिदअत से बचाए। और हम दीन या दुनियावी मामला में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखें, उनका क्या तरीका था, वो तरीका अपनाएं, अपनी जिंदगी में वो तरीका लाएं। अल्लाह हमें वो अमल करने वाला बना, जो अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, उस अमल पे चलने वाला बना, और उस अमल से दूर कर दे, उस अमल से हम सबको बचा जो अमल उन्होंने ना किया हो। आमीन। अल्लाह जहाँ मुसलमान परेशानी हार है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जहाँ मुसलमान कर्जदार है, उनको कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जहाँ मुसलमान बीमार है, उनको सेहत अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति